Hello guys, myself Chaitanya Kolte and I am again back with engineering mechanics videos. So we have done two sphere in earlier video. We'll be focusing on three spheres over here. Three spheres. इसमें दो ही टाइप आते हैं, ये आएगा सम या फिर ये थोड़ा अलग सा पार्ट है, ये भी सिंपल ही है, or else this will be asked. Okay. So these two numericals are important. If at all 8 marks के लिए आए तो 8 marks को छोड़ना नहीं, ये करना है. Okay. After that we will start with combination numerical. There are in combination numerical I'll solve one numerical throughout, and when you're concerned with the further, I'll just tell you the roadmap, as in I'll simplify the problem and I'll tell you the roadmap how to solve the numericals. Okay. So without wasting any further time, we'll start with the three sphere part. Three sphere, this part, this is considered as a simple numerical. Okay. मतलब क्या है, पहले तो डिमांड सप्लाई देखना है. तो सप्लाई, व्हेन यू आर कंसर्न विद द सप्लाई, दे आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर ए. Okay, they are talking about cylinder B over here, and they are talking about cylinder C over here. Okay. So when you're concerned with the given part, तो radius and weights are important from exam point of view. तो आपको ये given important है, पहले आपको इसके hunting के लिए जाना है. Okay. So radius A is 4 centimeter, radius B is 6 centimeter, and when you're concerned with radius C, it is 5 centimeter. Okay. When you're concerned with what do we say, weight is nothing but they have given the mass over here. So mass, weight is equal to mass into gravity. तो आप क्या करोगे, 15 into 9.81 over here. Similarly, weight of B will be 40 into 9.81, because weight of cylinder B is given as 40 kg. Weight of C will be 20 into 9.81. Okay. So you have weight B, weight C, and weight A. Okay. So 15 into 9.81, it is 147.15 Newton. Weight A, it is 40 into 9.81. This is the heaviest cylinder of all, that is 392.4 Newton. And 20 into 9.81, this is 196.2 Newton. So we are known with weights, we are known with the radius. Let's start with the free body diagram. Okay. So आपको क्या करना है, there are three parts, मतलब ये ऐसे connected part करो. There is a over here, फिर सबसे बड़ा आपका B है, B cylinder है. After that there is the medium one, that is C. So we have A, B, and C. As we have discussed earlier, always start with the weight reaction. Weight of A is 147.15. Weight of B, it is 392.4 Newton. And weight of C, it is 196.2 Newton. Okay. So these are the weights, respective weights आने के बाद, now see the point of contacts of the sphere. So this is 6, तो R6 आ जाएगा, इधर R5 आ जाएगा, over here R3, and again over here R1. Okay. So आपको क्या करना है, सिंपल. A पे मैंने कॉन्टैक्ट पॉइंट देखा, तो इट इज R6 and 1, 6 and 5. So this is 6 point, this is 5 point. Again there is a contact point between A and B, that is 4. तो इधर 4 है. And there is a contact point between B and C, that is 2. This is 2. So this is 2 over here. And there is 1. Okay. So आप इसके हिसाब से रिएक्शन भी बना सकते हैं. So we have reaction 6, we have reaction 5, we have the common part, that is R4, again R4 over here,
दिस इज मेकिंग, चलो अल्फा, तो ये भी एक्स के साथ अल्फा बना देगा। सिमिलरली दिस इज R2 इक्वल एंड अपोजिट। थोड़ा इसको ना दूर कर देते हैं, या सो अगेन ओवर हियर R2 एक्स के साथ बीटा कर रहा है, इधर भी बीटा कर रहा है, तो अल्फा और बीटा निकालना है आपको, एंड देयर इज R1। ओके, तो सेम कंसेप्ट से आपका अल्फा और बीटा निकलेगा, और अल्फा और बीटा निकलता है तो अप्लाई लामीस थ्योरम, एज इन व्हेन यू आर कंसर्न विद द लामीस थ्योरम, तो इधर कुछ ऐसे रहेगा, इधर तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दो कोलिनियर फोर्सेस आ रहे हैं, एंड शो इट ओवर हियर। ओके, नाउ पहले अल्फा और बीटा के हंटिंग के लिए जाते हैं, तो नाउ सी अपना लॉजिक क्या है समझ लो। ओके, joint center to center distance, either say line over here perpendicular, this is nothing but alpha. Okay, we'll focus upon alpha over here, alpha. Okay, when we are concerned with the channel width, ये 18 है। okay, और आपका अभी सेंटर टू सेंटर मतलब आर ए एंड आर बी, तो आर ए एंड आर बी का रेडियस कितना है 4 एंड 6, तो आपका हाइपोटेनस देखना, आर ए इज 4, दिस इज 6, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 सॉरी 4 प्लस 6, सो दिस विल बी 10। ओके, आफ्टर सिंपल है, आपको ये 18 माइनस द हाइपोटेनस कर दो, ये याद रखो 18 माइनस हाइपोटेनस, दिस विल बी 8, यू विल गेट द 18 minus 8, right, sorry 18 minus 10, 18 minus 10 you will get the adjacent side, and when you are concerned with alpha, alpha ये cos inverse से ही आता है, cos inverse of adjacent, that is 8 by 10, so we have alpha as 8 by 10, cos inverse of 8 divided by 10, okay, that is 36.86 degree. So we have alpha over here, alpha 36.86 degree. Similarly 36.86 degree we have alpha. अल्फा आने के बाद बीटा के लिए जाओ, तो बीटा ये देखना, बीटा के लिए we'll do the beta part as in again join center to center distance, draw vertical, draw again horizontal, this is nothing but beta, so this is beta. Okay, now I am going from B to C. B to C मतलब radius of B plus radius of C. Now see, radius of B is 6 and radius of C is 5. So 6 plus 5, see over here, एक ही पैटर्न रख रहा हूं मैं, 6 plus 5 11 is the hypotenuse. Okay, और वही लॉजिक रखना है, 18 minus 11 कर दो, you will get the adjacent side, 18 minus 11 ये 7 आता है, अभी वही है इंजीनियर्स में 7 आता है। ओके, सो दिस एंगल इज बीटा। ओके, so when I am concerned with beta, ये cos inverse ही आएगा, that is adjacent upon hypotenuse. So we have beta over here, cos inverse of 7 divided by 11, that is 50.47 degree. Okay, so we have beta, so beta भी आ गया, so we have beta, that is how much, 50.47, again 50.47 over here. ओके, तो इवेंचुअली आपको ये सिंप्लीफाई करना है, मतलब लामीज के लायक लाना है, तो आप लामीज लाओगे, सो दिस विल बी कोलिनियर का कंसेप्ट, R5 minus 147.15, ये आपका R6 है। ओके, एंड ओवर हियर दिस इज R4,
Now this is 36.86. Eventually this is 90. The whole angle will be 126.86. This is 90 और 360 में से माइनस कर दो, you will get this angle, that is 360 minus 126.86 minus 90, so 143.14 degree. So after solving your unknown with the whole part, ठीक है, तो पहले आपको इधर अप्लाई करना पड़ेगा नाम्स, ओके। तो 196.2 downward, this is R2, making angle beta with x-axis, that is 50.47 degree, and this is R1, okay. This is 90 degree, this is again of one quadrant, so 90 plus it is 140.47. 90 plus 50.47 is 140.47. अगेन दिस आपका यही कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स 180 डिग्री, 180 माइनस 50.47, 180 माइनस 50.47, दैट इज 129.53 डिग्री, ओके। तो इधर से आपको लामीज अप्लाई करना है। आफ्टर अप्लाइंग लामीज यू गेट R1 वैल्यू एंड R2 वैल्यू। वही कंसेप्ट पे आप इधर जाओगे, इधर जाने के बाद you will go on to sphere B. So this is 392.4. This is your R4. This is your sorry, it is going in downward direction. हाँ, ये इधर भी टच हो रहा है, R3 भी आएगा, R3 भी आएगा, तो इसलिए कुछ अलग दिख रहा था, तो वो भैया R3, ठीक है। सो आपको सिंपल है, इधर से R2 मिल गया, R2 इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो इधर दो अननोन्स है, तो और कोलिनियरिटी नहीं है और चार फोर्सेस है, सो अप्लाई समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल टू 0 ऑन स्फीयर B to get the value of the unknown, that is R4 and R3। वैसे ही R4 और R3 करने के बाद फिर से इधर R4 डाल दो, लामीज अप्लाई करो स्फीयर A पे, you will get the unknowns, that is R1, R2, R3, R4, R5 and R6। so ये सिंपल सम है, अगर आपको लामीज थ्योरम आता है तो, okay, you can solve this part। and the most important problem over here is nothing but this problem, ठीक है। इसमें आपको अल्फा कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो पहले प्रॉब्लम ये इधर फ्लो हो जाता हूँ, दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको और डिटेल में करते हैं। नाउ सी, three identical spheres, there are sphere P, Q, R, they are kept in equilibrium। equilibrium में कब रहेगा, जब ये और ये बराबर हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये इसका जो सेंटर है ये इसके बराबर सेंटर पे आपका आर का रेडियस सेंटर आएगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वही कंसेप्ट यूज करने वाला है, ओके। पी क्यू आर, each of weight W, the सबका weight W है, are arranged on a smooth inclined surface shown in figure। determine the minimum angle alpha which will prevent the arrangement from collapsing, that signifies equilibrium में रखा है, मतलब वही वैसे ही रहेगा जैसे आप कार्ड्स करते हो वैसे ही पार्ट है, तो वो वैसे ही रहेंगे, मतलब वो स्टैटिक ही रहेंगे, ठीक है। तो वो अल्फा निकालना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी अल्फा निकालते वक्त इतना तो आपको समझ रहा रहेगा, when I am concerned with P to R distance, that is the radius of P and radius of what we say R। similarly R to Q is the radius of R and radius of Q, similarly P to Q is nothing but the radius of P and radius of Q, okay। तो वो ट्रैवल आपको समझ रहा है और तीनों आइडेंटिकल है, मतलब सबका रेडियस सेम है, एज इन ये भी आ रहा है, 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 ये भी आ रहा है,
तो आप अगर ट्रायंगल देखते हो तो टू आर टू आर टू आर, तो ये कंसेप्ट क्या हो रहा है, दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इफ आई एम ज्वाइनिंग पी पी आर क्यू सॉरी, और एल्स पी क्यू आर, इट्स अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कंसेप्ट कैसे होता है, इधर से मैंने सेंटर लिया, इधर से मैंने सेंटर लिया, इधर से मैंने सेंटर लिया, ओके तो दे ये ज्योमेट्रिक सेंटर है। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का खासियत क्या रहता है, हर एक एंगल 60 डिग्री रहता है, 60 डिग्री इंस्क्राइब्ड एंगल ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री रहेगा, ये भी 30 डिग्री रहेगा, सिमिलरली दिस विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री, अगेन दिस विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री। bien क्लियर, तो ये एंगल के कंसेप्ट, ज्योमेट्रिक कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। ओके, so without wasting any further time, I will start with the upper sphere, that is R। ठीक है, R से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बराबर से समझ लो, पहले ये प्रॉब्लम भी अच्छे से ड्रॉ करता हूं। हाँ, now see, we are talking about P, this is P, sorry, this is R, P, Q, तो सेंटर सेंटर एंड सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया। ओके, again when we are concerned with the geometric center of the equilateral triangle, तो इधर किधर तो भी आएगा। okay, so this is 30, this is 30, this is 30, this is 30, again this is 30 and this is 30। okay, now let's separate the r part। r part as in हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं। ये कांटेक्ट पॉइंट को n1 पकड़ते हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट को n2 पकड़ते हैं। ठीक है, तो वो कांटेक्ट पॉइंट हम लोग ने देख लिया। नाउ सी, आई एम टेकिंग r, so we are starting with sphere r now। ओके, तो दिस इज द सेंटर, सेंटर पे उसका वेट आएगा, सबका वेट w है। ओके, इधर ये टच हो रहा है तो ऐसे, इधर ये टच हो रहा है, नासी हो भैया, इधर ये टच हो रहा है, तो इधर आपका आ गया n1। ठीक है, सिमिलरली देखा जाए तो ये n1 का क्या चीज है, दिस इज n1, दिस इज n1, समझ रहे हैं, दिस इज n1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका n1 है, again clear, this is n1 and when I am concerned with the angle of n1, तो ये देखना ये सेम है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एंगल ऑफ n1, ऐसे रखते हैं, जस्टिफाइड एंगल ऑफ n1 as 30 degree with the horizontal, with the vertical। ओके, सिमिलरली ये भी सेम ही रहेगा, इधर आपका n2 है और ये कांटेक्ट पॉइंट सेट कर देते हैं, ये n3, ये n2। ओके,
So this is N2 and this will be 30 degree, so this will give you some relaxation. Okay, so we have the component summation of fx. अभी इधर क्या है, for according to the Lami's theorem all angles should be known and one of the forces should be known. तो none of the forces are known, n1 भी नहीं पता, n2 भी नहीं पता, w भी नहीं पता, but angle सब पता है. तो Lami's के एंगल के हिसाब से सॉर्टेड है, but about the forces nothing is known. सो लामिस भी अप्लाई कर सकते हैं. लामिस अप्लाई करके देखते हैं. लामिस थ्योरम के लिए क्या करते हैं, सबको आउटवर्ड करते हैं. सो दिस इज W, दिस इज N1, दिस इज N2. ओके, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है. सो दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 90. इवेंचुअली ये हो गया, सेम आएगा, मतलब 90 प्लस 60 150, 150 300 and 300, this angle 300 and ये 60 degree. Okay, so we'll apply Ramis theorem. So W upon sine of the angle between other two forces as in 60 degree, it is equal to n1 upon sine of the angle between other two forces 150 degree and n2 upon sine of the angle between other two forces 150. So when we are concerned with the further part, n1 and n2 same ही आ जाएगा, that is w sine 150 degree upon sine 60 degree. So eventually when you are concerned with n1 equal to n2, it is something sine 150 divided by sine 60. So it is 0.577 W. So I've got the relation between the same. So I'll name this as equation number 1. Okay. तो इक्वेशन नंबर 1 मतलब मैंने स्फीयर R पे कॉन्सेंट्रेट किया तो ये शॉर्ट हो गया. ठीक है, थोड़ा स्पेस का ये है बट हो जाएगा. ओके, सिमिलरली वी वेंट फॉर स्फीयर. नाउ सी, थोड़ा स्पेस का है, सो व्हाट विल डू इज, ये कंसेप्ट समझा रहेगा आपको, आई विल डिलीट इट. ठीक है, okay, now we have the space for the sphere P. स्पीयर P. नाउ स्पीयर P या फिर Q पसंद है तो Q ले लो, एक ही लेना, बिकॉज P एंड Q ये इक्वल रिएक्शन दे रहे हैं. तो N1 एंड N2 सेम है, सिर्फ आपको N3 का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए व्हाट विल डू इज वी स्टार्टेड विद P. ओके, ना सी हो भैया, ये अभी कंसेप्ट बराबर से देख लो. ये कंसेप्ट बराबर से देख लो. ठीक है, नाउ सी, ये अल्फा. ओके, तो बराबर परपेंडिकुलर आपका N3 आ गया. दिस इज 90, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा रहेगा. ओके, सिमिलरली मैं और ऊपर गया, ये तो बराबर देखा जाए तो ऐसे ही जाएगा. ये देखो, ये ये अल्फा एक्चुअली इधर से आ जाएगा ऐसे, इसका ही एक्सटेंशन रहेगा.
and this is N3. This is alpha. This will be 90 minus alpha. This is 90. तो आप आगे बढ़ रहे हो, ये समझ लेना. ओके, नाउ सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया. ओके, सो दिस इज 90. ये आपका 30 डिग्री है. ओके, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा. ओके, अल्फा अल्फा को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. एक सेकेंड. एक सेकेंड, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, अभी दूर हो जाएगा. ये सेम लाइन पे नहीं. नाउ सी द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया. एक मिनट, ये हम लोग ने सेम लाइन पे लिए इसलिए फंस गए. ओके, इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए बता रहा हूँ. ये बराबर था. नाउ इधर से मैंने 90 खींचा, तो ये 90 है, तो ये अल्फा है. ओके, दिस एंगल इज अल्फा. और अगर आप स्पीयर बी की बात कर रहे हो, पी की बात कर रहे हो, ओके, दिस इज N3. ये अल्फा है, इसीलिए ये अल्फा रहेगा. ओके, मतलब ये N3 साइन अल्फा, दिस विल बी N3 cos अल्फा. एंड व्हेन यू आर कंसर्न विद P, ये आपका N2 था इधर, और N2 वो x के साथ 60 डिग्री कर रहा था, तो इसके भी दो कंपोनेंट, N2 cos 60 डिग्री एंड N2 sin 60 डिग्री. ओके, और जो वेट कंपोनेंट है, दिस इज द वेट कंपोनेंट. तो दिस इज द एफबीडी ऑफ द P. जस्ट कॉपी इट. ये देखना, दिस इज द एफबीडी ऑफ द P. So P का FPD आ गया, तो now you can apply the condition of equilibrium, that is summation of fx equal to 0, that is right side जाने वाला positive, left side जाने वाला negative. So when you are concerned with this x, तो n3 sin alpha, okay, n3 sin alpha minus n2 cos 60 degree, okay, it is equal to 0. और मैं और सिंप्लीफाई करूं तो n3 साइन अल्फा माइनस n2 की जगह मैं डालूंगा 0.577 w cos 60 डिग्री, इट इज इक्वल टू 0. सो वी हैव n3 साइन अल्फा वैल्यू एज, वो राइट साइड जाएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा. 0.577 इंटू cos 60, तो 0.2885 W. I'll name this as equation number 1. Equation number 1 आपको समझा रहेगा. Similarly, I went for the second condition, that is summation of Fy equal to 0. Upward positive है, downward negative है. तो upward positive है, तो n3 cos alpha minus W, फिर माइनस n2 साइन 60 डिग्री, इट इज इक्वल टू 0. तो n3 cos अल्फा विल बी इक्वल टू W प्लस n2 साइन 60 डिग्री. ओके, सो W
प्लस N2 का वैल्यू है, N2 का वैल्यू है अभी डाला था 0.577 W cos 60 डिग्री, W cos 60 डिग्री। ओके, तो सिंपल है, ये W के कंपोनेंट है, तो N3 cos अल्फा, W कॉमन लिया तो 1 प्लस 0.577 cos 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, so you'll get the value of N3 cos alpha as well. Okay, N3 cos alpha, that is 1 plus 0.577 cos 60 degree. So 1.2885 W. So you have the equation number 2. ओके, तो आपको अल्फा निकालना है तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब क्या, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, सो क्या हो जाएगा, n3 sin अल्फा upon n3 cos alpha, it is equal to 0.2885 W upon 1.2885 W. So W is getting cancelled, N3 is getting cancelled, and eventually sine upon cos is tan. So I'm directly writing alpha equal to tan inverse of 0.2885 upon 1.2885. So you'll get, eventually you will get the value of alpha, that is tan inverse of 0.2885 divided by 1.2885. So that will be 12.62 degree. So that is nothing but अल्फा। ओके, तो थ्री स्पीयर का ये प्रॉब्लम आया तो ये भी अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट एज इन इधर भी फुल मार्क्स चाहिए, इसमें कंसेप्ट है वो एक बार फिर से आप कर लो तो हो जाएगा। ओके, so without wasting any further time, we are starting with the next type of the numerical, that is combination numerical. Okay, when you are concerned with the combination numerical, these are the few न्यूमेरिकल्स, इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाइज तीनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज होगा, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट द हिंज, ज्यादा करके हिंज रखना है, मोमेंट अबाउट हिंज इक्वल टू 0, जैसे बीम में हिंज रखते थे, हिंज को रखने का ये एक ही मोटो है, उधर समय एफ एक्स और एफ वाई मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उधर 0 हो जाता है। ओके, ना सी ओवर हियर क्वेश्चन कुछ डिमांड कर रहा है और सप्लाई भी कुछ कर रहा है, तो वो पहले देख लेते। आई विल राइट द गिवन पार्ट। A cylinder of weight 300 Newton. The weight of the cylinder is given as 300 Newton. In equilibrium as shown in figure, determine the tension to find, मतलब supply demand क्या कर रहा है देखना, to find it is tension in string AD, tension AD पूछा गया है, and the reaction at C and B, reaction at C and reaction at B पूछा गया है। Okay, the length, they have given the length of AE is 750 mm. Okay, 750 mm. So आपको इधर कंपोनेंट देखना है, कंपोनेंट वाइज देखा तो there is a cylinder, there is a rod, there is a string attached to the hinge of the rod part, मतलब rod में hinge है, and ये string है वो आपके सिलेंडर को भी पकड़े हुए है, एज इन ये स्ट्रिंग के वजह से ही इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर मेंशनिंग ओवर हियर, find the tension in AD, find the reaction at C point, find the reaction at B point, and they have not mentioned reaction about A. ओके, तो रिएक्शन अबाउट ए नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कंपोनेंट वाइज मैं क्या देख रहा हूँ, देयर इज द सिलेंडर एंड देयर इज द रॉड। ओके, और रॉड और सिलेंडर का नाता किधर है, मतलब जुड़ा किधर है, ये बी पॉइंट पे और स्ट्रिंग से जुड़ा है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। आई विल सेपरेट दिस पार्ट, आई विल सेपरेट द रॉड नेम इज ए, तो ये देखना
there's a rod over here. Okay, rod is A E and there's a B point. Okay, and there is nothing but क्या है, cylinder. Cylinder. Okay, now see, simple है, simple ही रखना है आपको. Now कनेक्शन पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. ए पे हिंज है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ गया. आपको बीम्स के सबसे पहला जो लेक्चर है जो रिकॉर्ड किया था बीम्स के बेसिक से आपको समझेगा, वी एच ए क्यू आया वो. ओके, देयर इज अ बी पॉइंट कॉमन ऑन द बोथ द सरफेस, तो इधर बी पॉइंट है. ओके, सिमिलरली ये सी पॉइंट है. ओके, when we are concerned with E point पे ये देखना, there is a 500 Newton force. Okay, again B और दोनों इधर B कॉमन है तो इक्वल एंड अपोजिट लिया. ओके, RB. तो ये एंगल कितना कर रहा है वो देखते हैं थीटा, ये एंगल कितना कर रहा है वो देखते हैं थीटा. ठीक है, और देखा जाए तो ए बी का डिस्टेंस, दे हैव टेकन द ए बी डिस्टेंस. अभी ये देखना सिंपल है, ये सर्कल है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है. ओके, ये एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर मतलब ये स्ट्रिंग, ये एंगल बाइसेक्टर है. इतना तो कंसेप्ट देखा है हम लोग ने पार्ट नंबर 1 में, वही यूज करेंगे. और ऊपर से एक कंसेप्ट और ऐड ऑन हो गया, दिस विल आल्सो बी 500. ओके, और ये टोटल डिस्टेंस है 750, मतलब ये बनता है 250. ओके, सो वी हैव द डिस्टेंसेस, वो डिस्टेंसेस ले लेते हैं. सो दिस इज 500 and they have given AE as 750. 750. ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट है दैट इज स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग AD टेंशन इज अवे फ्रॉम द पॉइंट. अगेन सेंटर से अटैच्ड, सेंटर से अटैच टेंशन AD. थीटा. ओके, और इसके ऊपर एक वेट रिएक्शन भी आएगा. वेट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन. वेट ऑफ द सिलेंडर क्या है भाई, वेट ऑफ द सिलेंडर दिया था 3000, 300 है या 3000, 300 है, 300 न्यूटन. ओके, सो अभी मैं क्या देख रहा हूं, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, 1 2 एंड 3. अगर ये थीटा मिल जाता है तो, अगर ये भी थीटा मिल जाता है, ये दोनों थीटा अगर मिल जाते हैं, चलो आई नेम दिस एज अल्फा. ठीक है, तो ये अल्फा और थीटा मिल जाते हैं तो इधर वी कैन अप्लाई लामीस थ्योरम. लामीस थ्योरम बिकॉज 300 इज नोन, तो टेंशन एडी और आरबी मिल जाएगा. ओके, सिमिलरली इधर भी थीटा मिल गया, थीटा मिल गया, तो आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए लगा रहे हो, तो ये तो परपेंडिकुलर है. ओके, और ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही लगता है. एंड व्हेन वी आर कंसर्न विद द फर्दर पार्ट, उसका वेट वगैरह भी नहीं दिया. ओके, रिएक्शन एट बी इधर डायरेक्टली मिल रहा है, देखना रिएक्शन एट बी इधर डायरेक्टली मिल रहा है. So I am applying condition of equilibrium, that is summation of moment about A equal to 0, clockwise positive and anti-clockwise negative. आपने दूसरा उल्टा लिया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो भी सेम आंसर आएगा. ओके,
तो अबाउट ए किया तो मोमेंट का कंसेप्ट क्या क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हेन आई एम कंसर्न विद द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से जो भी पास हो रहा है वो जीरो मोमेंट देगा, तो ये भी जीरो मोमेंट देगा, ये भी जीरो मोमेंट देगा, टेंशन एडी भी जीरो मोमेंट देगा। तो बचा कौन, आपका आरबी। आरबी ये देखना बराबर परपेंडिकुलर है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉर्टेड है 500 है, एंड अबाउट ए इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो माइनस, तो फर्स्ट मोमेंट आ रहा है आर माइनस आर बी, माइनस इज फॉर नेगेटिव, सॉरी माइनस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आर बी इंटू 500। ओके, फिर से हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये देखना ये आपका ए है, ये आपका 500 न्यूटन है। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए, एंड दिस इज 750। मतलब क्या है, आपको ये एंगल मिल जाता है तब आ जाएगा। तो एंगल के लिए क्या करना है देखना, सिंपल, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और ये आपको पता रहेगा दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, वही कंसेप्ट पे आगे का पार्ट हो जाएगा। आई टेक दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 500, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट डायमीटर दिया है 200, तो रेडियस उसका 100 रहेगा। तो इधर से मुझे ये अल्फा मिल जाएगा, ये अल्फा। ठीक है, सो ये अल्फा है, बिकॉज ये अल्फा है, क्यों बोल रहा हूं मैं ये अल्फा है, क्योंकि ये अल्फा है। ठीक है, दिस इज अल्फा, तो आई गेट द अल्फा एंगल। तो अल्फा कैसे मिलेगा, अल्फा विल बी अपोजिट और एडजेसेंट, मतलब tan इनवर्स ऑफ 100 बाय 500, आई गेट अल्फा। तो अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 5, तो दैट इज 11.31 डिग्री, 309 है, 31 ले लिया। ओके, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये भी अल्फा रहेगा, तो ये टोटल एंगल 2 अल्फा रहेगा, 2 अल्फा रहेगा, तो ये आपका 2 इंटू आंसर, तो 22.61। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये टोटल एंगल, अभी अभी हम लोग की बात चालू है, ये अल्फा है, सी हो गया, ये भी अल्फा है, तो ये 2 अल्फा है, मतलब ये 2 अल्फा है, और 2 अल्फा का वैल्यू 11.31 का इंटू 2, दैट इज 22.61। तो ये आने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होता है। अभी ये देखना, अगर साइन साइन से जा, अगर ये एंगल है, एंगल का अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट और हाइपोटेनस सॉर्टेड है, तो आप कॉस यूज करते हैं, तो कैन आई राइट cos of 2 alpha, that is 22.61 degree, it is equal to adjacent, that is perpendicular distance of the moment of 500 newton, of force 500 newton, adjacent, that is perpendicular distance, into hypotenuse, that is 750. So eventually you will get the perpendicular distance for the moment of 500 newton. So it will be cos, it will be cos of 22.61 bracket में into into 750, that is 692.35, 692.35736 लेता हूं, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। mm में है या मीटर में है, mm में है। ओके, सो वी वर ऑन टू रॉड ए ई, इसका आरबी तो शॉर्ट हो गया क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता था। इसका 500 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव गॉट 692.36 mm। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, अबाउट ए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो क्लॉकवाइज सिग्निफाइज पॉजिटिव साइन, तो प्लस 500 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ जाता है आपका 692.36 equal to 0, you will get the RB value। तो RB आपको सिंपल है,
692.36 into 500 divided by 500 मतलब 692.36 न्यूटन ये आपको आरबी मिल गया। ओके, अभी आरबी आपका सॉर्टेड है। अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। विल फोकस ऑन दिस पार्ट। ये कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। सो वी हैव गॉट आरबी एज 6 क्या था 692.36 692.36 न्यूटन। वी हैव द वैल्यू ऑफ आरबी। अगर हम लोग को टीटा मिल जाता है तो टीटा मिलने पे आपको सिंपल है, यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ लामीस थ्योरम। तो टीटा के लिए जाते हैं, तो टीटा भी कुछ सिंपल ही है, सिर्फ गौर से देखना। व्हाट एम आई कंस्ट्रक्टिंग, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब परपेंडिकुलर किया तो 90 डिग्री है। अभी इधर से भी परपेंडिकुलर किया, ये 22.65 है, तो ये क्या रहेगा 90 माइनस 22.61, ठीक है। ये 90 है तो ये एंगल कितना रहेगा 22.61। मतलब आरबी वाई के साथ 22.61 कर रहा है, आरबी वाई के साथ 22.61 कर रहा है। मतलब x के साथ ये थीटा जो है, थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस 22.61, दैट इज 90 माइनस 22.61, 60 कितना है 67.39। तो आई हैव गॉट दिस एंगल एज वेल, दैट इज 67.39, ठीक है। अभी क्या है लामीस के लिए, लामीस के हिसाब से कर दो, दैट इज 300 न्यूटन ओवर हियर, टेंशन एडी ओवर हियर, टेंशन एडी इज मेकिंग एंगल ऑफ अल्फा। अल्फा अल्फा था अपना सी, अल्फा था इधर देखना, अल्फा था 11.31 एंड ये ऐसे कुछ जा रहा है आपका आरबी। आरबी एक्स के साथ थोड़ा ऐसे जा रहा है, आरबी जा रहा है, आरबी एक्स के साथ, आरबी एक्स के साथ ये थीटा करना है, मतलब 67.39। ओके, तो व्हेन यू आर कंसर्न विद द टोटल एंगल, अभी कंसेप्ट काम में आएगा। टोटल straight line signifies 180, 180 plus 30 और 11.31 plus 67.39 आपको वो पूरा एंगल मिल जाएगा। 180 प्लस 11.31 प्लस 67.39 you will get 258.7 डिग्री, ठीक है। ये एंगल निकालना चाहते हो तो ये परपेंडिकुलर है, तो 90 माइनस 11.31, तो दैट इज 78.69 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल निकालना चाहते हो तो इट विल बी 90 माइनस 67.39, तो आपको 22.61 है। ओके, अभी ऐसे कुछ आ रहा है तो कंसेप्ट पकड़ के चलना है, कंसेप्ट पकड़ना है, मतलब 300 अपॉन, अभी तीन फोर्सेस है, 1 2 3, 300 अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, तो ये एंगल आ जाएगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो 300 अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, दैट इज 258.7 डिग्री। इट इज इक्वल टू टेंशन एडी अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हट गया, ये दोनों के बीच का एंगल, ये दो फोर्स है उनके बीच का एंगल, दैट इज 22.61। इट इज इक्वल टू आरबी अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। आरबी छोड़ के अदर टू फोर्सेस कौन है, that is tension AD and 300, so 78.69 will be angle over here. Solve this and this to get the value of tension AD. Similarly, solve this and this to get the value of RB. Now while solving it, see the units, be unit specific, as in the weight was given in Newton, the unit of tension AD
and RB will be in Newton. Okay, I'll just solve it for you. So 300 into sine 22.61 divided by sine 258.7. तो आपको नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव टेंशन नेगेटिव है तो भी टेंशन नहीं है, टेंशन इधर नेगेटिव है. ओके ओके 117.62. सिमिलरली अगर ये सॉल्व कर रहे हो 300 इंटू साइन 78.69 डिवाइड बाय साइन 258.7 तो 299.98. so these are the expected answers. okay so I hope आपको ये combination problem समझा है. Similarly I'll help you out with this two problems, बट व्हेन यू आर कंसर्न विद दिस पार्ट तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है क्या क्या है. तो देर आर टू स्पीयर एंड देर इज अ एल शेप, क्या है, राइट एंगल फ्रेम ए बी सी. तो मैंने ये तीनों को सेपरेट कर दिया. देर इज अ राइट एंगल फ्रेम. ओके द नेम इज ए बी एंड सी. okay so you're observing over here there's a hinge support and there is a roller support. So I'll go with the hinge support. So this is VB, this is HB. Similarly this is what we say roller, so RC, and they have given the distance that is 5R. okay 5R छोटा r है 5R. okay and when we are concerned with this part, that is there are cylinders attached to it, cylinder 1 and similarly the cylinder 2. Will plot a common point as in this is 1 2 3 and 4. So 1 2 3 3 again 4 and 1 over here, 2 over here and 4 over here. okay when you are concerned with the reaction it is just equal and opposite if it's a common reaction. So R1 over here, R1 over here, R2 over here, R2 over here, R3 over here, R3 over here, R4 over here, R4 over here. okay and when you are concerned with the weight of the rollers, the weight is always perpendicular to the base surface. So this is 500 Newton, again this is 500 Newton. okay so if we are considering this as the first sphere, this as the second cylinder, जो भी है sphere, roller जैसे है, this is cylinder roller 1, this is roller 2. okay so now see ये सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर, ये x के साथ 30 डिग्री कर रहा है तो ये भी x के साथ 30 डिग्री करेगा. तो वही बेसिस पे I've taken this as 30, I've taken this as 30, I've taken this as 30, I've taken, और ये बराबर परपेंडिकुलर लगता है तो 90 30 तो ये 60 रहेगा. दैट्स व्हाई दिस विल बी 16. so that's why this has 60, this has 60. so what you will do is you'll go for roller number 1. okay आपके पास एंगल्स है, सब सॉर्टेड है, लामिस थ्योरम अप्लाई करो, R3 और R4 मिल जाएगा. ठीक है R3 और R4 अभी ये देखना ये कॉमन है, R3 is known. तो इसमें अभी I'll help you out with the लामिस थ्योरम. ये आपका 500 न्यूटन आ गया, ये आपका R4 हो गया, दिस इज योर R3 डिवाइड किया, R3 x के साथ 30 डिग्री कर रहा है, ये आपका 60 डिग्री कर रहा है, दिस इज 90 तो दिस विल बी 150 एंड दिस विल बी 90 प्लस 30 120 और 60 में से दिस विल बी 90. ओके
So eventually you will get, if you apply Lami's theorem on ruler number 2, you will get R3 and R4. R3 मिल गया, तो इधर कैसे मैंने देख लिया, दिस टू आर कोलिनियर, तो हम लोग क्या करते हैं, दिस विल बी R3 माइनस R1 बिकॉज ये नोन है, ओके ऐसा नहीं, ऐसे जाते हैं, बिकॉज राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव रहता है, तो R1 माइनस R3, R3 का वैल्यू नोन है, ये आपका 500 न्यूटन, ओके, एंड दिस इज योर R2, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, इवेंचुअली ये 90 ही रहेगा, फिर से वही सीन से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ठीक है, R1 मिला, R2 मिला, R4 मिला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, अभी ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। नाउ द रेडियस इज R, मतलब ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R है, ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस मिला के ये पूरा 2R है, तो वो डिस्टेंस यूज होने आ जाएगा, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज 2R, okay. So you will take, what you will take, a moment about b equal to 0 for the right angle frame, in that clockwise is positive, anti-clockwise is negative, okay. So when you are concerned with this part, clockwise is positive, तो ये देखना about a, this is moving in anti-clockwise, this is clockwise, this is clockwise, RC is anti-clockwise. So we'll start with RC first. RC mine RC is anti-clockwise, तो minus RC into 5R plus R2 into R plus R4 into the distance from here to here, that is R plus 2R, 3R, okay. Again minus R1 into R1 anti-clockwise जा रहा है, into R, it is equal to 0 किया, इसीलिए R R R R कट होके वो साइड गया, 0 हो गया, आपको you're known with R2, R4 and R1 with the help of the ruler 1 and ruler 2, you will get a value of RC. तो वैसे ये सम सॉल्व करते हैं and ये आपको आ जाएगा. I'll send you the solution of the same because the video is extending more, और भी content करना है, इसलिए I'll send you the solution of the same, you see it, solve it with the help of examples, and this completes our 2 sphere, 3 sphere and combination problem. Thank you guys, thanks for watching, stay connected for the further video. I'll be posting the further video tomorrow. Do subscribe the channel, give likes, as the hard work is important. I am doing it after college hours, so थोड़ा likes और comments मिल जाएंगे, so I'll definitely respond for the same. Thank you guys, thanks for watching and have a great day.